नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। लेडी सिंघम ने बीजेपी मंत्री की निकाली हेकड़ी। कानून तोड़ने पर मंत्री की गाड़ी से उतारी नंबर प्लेट। महिला सिपाही और राज्य मंत्री के बीच हुई कहासुनी। राजस्थान सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट। सीएम गहलोत के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। पीएल पुनिया बोले, सचिन पायलट अब बीजेपी में। भारत में कोरोना के 29,000 के करीब नए मामले। देश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के करीब। 24 घंटे में हुई 500 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 658 नए संक्रमित। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 21,240। 60 मरीजों की हालत गंभीर। गुजरात के सूरत में एक महिला सिपाही ने साबित कर दिया है कि वर्दी और फर्ज से बड़ा कुछ नहीं होता। गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कानाणी के बेटे प्रकाश कानाणी अपने समर्थकों को कर्फ्यू उल्लंघन मामले में छुड़ाने पहुंचे थे, लेकिन कांस्टेबल सुनीता यादव ने प्रकाश कानाणी को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। महिला सिपाही और राज्य मंत्री के बीच फोन पर काफी देर तक कहासुनी हुई। तकरीबन 1.5 घंटे तक चले इस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद सुनीता यादव को छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि ईमानदारी से काम कर रहे अफसरों को ड्यूटी मत सिखाओ, अपनी बिगड़ी औलादों को तमीज सिखाओ। ऐसे ढीड़ों को सुधारने के लिए सुनीता यादव जैसे और अफसरों को आगे आने की जरूरत है। સાહેબ તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ। તમારા પુત્ર સુપુત્ર અહીંયા શું નામ ભાઈ તમારું? પ્રકાશ। આ પ્રકાશભાઈ અહીંયા આવ્યા છે, એમ કહે છે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું। તો સાહેબ તમે મને એમ કહો કે ફોન ઉપર ના વાત થઈ શકે? હા, એમનો દોસ્ત હતો, એ દોસ્તનો તો ફોન નંબર હતો ને સાહેબ। ઘણી વાર તો લોકો એવું કહે છે આપણા અધિકારીઓ કે ફોન ઉપર અમે વાત નહીં કરીએ। અધિકારીઓ એવું કહે છે ફોન ઉપર વાત નહીં કરીએ? મેડમ હવે ઓવર થાય છે, મારા બાપા છે, ઓકે સાહેબ, મારા ફાધર છે। ઓકે, હું સાહેબ કહીને બોલાવું છું। ભલે તમારા ફાધર તો હું સાહેબ જ કહીને બોલાવું છું ને। હા તો સાહેબ કઈ વાંધો નહીં, પણ હું એમ કહું છું કે ભાઈ સાહેબ તમારા દીકરા છે એટલે એમને પણ નિયમ કાનૂન તો લાગુ પડે છે ને સાહેબ। ઘરની બહાર તો નીકળી ગઈ છે ને યાર। ઓકે, પકડી લો એને, હો, કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો। એટલે સાહેબ મારું કહેવાનો મતલબ એવું નથી, મારું કહેવાનું ખાલી એટલું છે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો। તમારા નામની એ એમએલએ ની નામની પેલું શું કહેવાય નામ પ્લેટ લગાવીને ફરે છે, તમે હાજર નથી। મારો છોકરો છે, કેમ ના ફરે? એટલે સન છે, તમારો સન છે ગાડી છે સાહેબ, તમારો સન છે એટલે એમની પાસે હક છે કે તમારું એમએલએ નું પેલું બોર્ડ લગાવીને। તમે કાયદેસર કરો તો કરી શકો એટલું છો। બધું risk હું એમ નહીં સાહેબ, તમે આ શું કહેવાય એમએલએ નું જે બોર્ડ લગાવ્યું છે તમારો દીકરો, લગાવી શકશે, મારી ગાડી છે, લગાવે। એટલે તમારો તમે હાજર ના હો તો પણ કોઈ પણ લગાવી શકે તમારી ગાડીમાં? ઓય ઉભો રહે। કાયદો નહીં બતાવો બેન। હા સાહેબ 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 મારી વાત સાંભળો સાહેબ, હું કાયદો નથી લગાવતી અંકલ દંડો બતાવે છો મેડમ હજુ બી। તમે કોની સાથે વાત કરી? સાહેબ મને ખબર નથી હું તમે કોણ બોલી રહ્યા છો, પણ હું ખાલી દંડો બતાવે છે। પણ સાહેબ જો તમે આરોગ્ય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબ બોલતા હોય સાહેબ, તો આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે તો મારવાનું બી બધા કાયદા બહુ માને જાણે કેમ હું કોરોના આપણે કોરોના લઈને આવ્યા હોય। ફરશે મારજો। તમારો ગાડી લઈને ફરે। સાહેબ પણ ગાડી લઈને ફરેનો વાંધો નહીં, પણ તમારો નંબર શું કહેવાય પેલું જે બોર્ડ છે એ લગાવીને ફરવાનો હક છે। ગાડી મારો તોડ હોય ને પણ સાહેબ તમે હાજર નથી તો એ કેમ લગાવીને ફરી શકે? હાજર નથી, મારો સન છે, ફરે તો ગાડી લે। ઓકે સાહેબ, આમ ફરે છે કઈ એવું હું એક કરું? ઓકે સાહેબ, ઓકે। એટલે સાહેબ હું ખાલી એટલું કહેવા માંગુ છું, આપ સાહેબ આરોગ્ય મંત્રી સાહેબ છો, એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે દીકરો ને આપણા પરિવારના લોકો આપણે પહેલા તો શું કહેવાય આવી રીતે માસ્ક પહેરવાનું, બહાર નીકળવાનું, એ બધું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ। તમે ભાઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરો ને, હું કાં તમે। राजस्थान में जारी सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग के 200 से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है।
सीएम अशोक गहलोत के करीबी और ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी की गई। खास बात यह है कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी। आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बड़ा बयान सामने आया है। पीएल पुनिया ने कहा है कि सचिन पायलट अब बीजेपी में हैं। हालांकि सचिन पायलट ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सब पार्टी में ठीक चल रहा है। तो आपको ये बता दें कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। बहुमत के लिए 101 सीटों की ज़रूरत है। कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, बीजेपी के पास 72 और अन्य के पास 21 विधायक हैं। लाख प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी आज का दिन तय कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को मात खानी पड़ेगी। रात को भी देर रात तक माननीय विधायकों को आने का सिलसिला जारी था और आज प्रातः ही सिलसिला शुरू हो गया है और भारी संख्या के अंदर पूरी संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ के अंदर रहेंगे। लोकतंत्र का हनन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लाख प्रयास कर ले, यहाँ पर कुछ कामयाबी नहीं मिलने वाली है। महेंद्र जी, क्या लगता है जो सियासी संकट मंडरा रहा है आपकी सरकार पर पायलट? हमारे इस सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, 1% भी संकट नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से आपको बता दें। कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपके सामने। सिरसा से 7 नए कोरोना के मामले एक साथ सामने आए हैं और आपको ये भी बता दें कि 3 संक्रमित बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संक्रमण की पुष्टि की है। फिलहाल सभी संक्रमितों को कोविड-19 वार्ड में दाखिल करा दिया गया है और संक्रमितों के परिजनों के लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। संक्रमितों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से आपके सामने। एक साथ यहां पर जो संक्रमण के मामले 7 निकलकर सामने आए हैं, उसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो 7 आज मरीज मिले हैं, उनमें से 3 मरीज बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन मामलों की पुष्टि की है और फिलहाल सभी संक्रमितों को कोविड-19 वार्ड में दाखिल करा दिया गया है और संक्रमितों के जो परिजन हैं, उनके भी लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार उनके संपर्क में आए लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और जहां पर वो संक्रमित रहने वाले हैं, जहां जहां पर अब तक गए थे, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। तो हरियाणा में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक वैसे ही मौत के आंकड़ों में भी इजाफा होता जा रहा है। मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं और सरकार की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने देश का हाल बेहाल कर रखा है। आज अमेरिका के बाद अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले भारत में सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में 29,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 9 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,53,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,701 नए मामले सामने आए और 500 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे प्रभावित देश 3रे नंबर पर इस समय है। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 589 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। तो वहीं कोरोना ने 4 जिंदगियों की सांसें थाम दी हैं, जबकि 658 नए संक्रमित मिलने से एक्टिव केसों की संख्या 4,956 पर पहुंच गई है। 19 जिलों में 658 नए मामलों से संक्रमितों की संख्या 21,240 पर पहुंच गई है। इसमें से 15,983 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं।
यहीं आपको ये भी बता दें कि 31 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 60 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 11 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नए मामलों में सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में 222 मामले, गुरुग्राम में 112, सोनीपत में 101, पलवल में 35, रोहतक में 26, करनाल में 25, हिसार में 24, झज्जर में 22, पानीपत में 19, नूह में 16, भिवानी और अंबाला में 12-12, कुरुक्षेत्र और कैथल में 8-8 मामले, सिरसा में 6, फतेहाबाद में 4, पंचकुला और यमुनानगर में 3-3 संक्रमित मिले। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सके। उन्होंने ऋण लेते समय ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाया गया बड़ा फैसला बताया है और ये भी कहा है कि इससे प्रदेश के लाखों छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं लॉकडाउन के बाद आई मंदी के इस दौर में प्रदेश सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये से कम करके मात्र 100 रुपये करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा और मंदी से उबरने में किसानों को मदद मिलेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए हर किसान को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 2000 रुपये देने पड़ते थे। इस स्टाम्प ड्यूटी को खत्म करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग चली आ रही है, जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य ने कहा है कि जो सिख फॉर जस्टिस करके आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा खालिस्तान रेफरेंडम 2020 की वोटिंग के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे में अपील की गई थी, उस वोटिंग में सिख समाज की तरफ से उसका बहिष्कार करने पर सिख समाज का आभार उन्होंने जताया। और वहीं शांडिल्य ने कहा कि सिख समाज ने साबित कर दिया है कि हिंदू और सिख एक सिक्के के दो पहलू हैं और वोटिंग का बहिष्कार करके सिखों ने देशभक्ति का परिचय दिया है। जिन सिख नौजवानों को सिख फॉर जस्टिस गुमराह कर रही है, उनकी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया काउंसलिंग करेगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुंह पर जो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो जरनैल सिंह भिंडरावाले के खालिस्तानी मुहिम की समर्थन करता है और मुहिम छेड़ी हुई है जिसने, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हरियाणा के सिखों ने। रेफरेंडम 2020 को लेकर कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा में आह्वान हुआ था कि यहाँ वोटिंग होगी, लेकिन एक भी सिख समाज के एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं किया। मैं उन गुरुओं के सिखों को नमस्ते करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, उनको शीश नवाता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है राष्ट्र हित में। उन्होंने संदेश दिया कि हिंदू सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।